also helps us to find out the limit of functions which are not in these forms. If you are not able to simplify it or they are not in the form जो भी हमने सारी देखी है polynomial, exponential, logarithms, then we can find the limit using this form. It says for any positive integer n, limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a is given by this. Now see, if we had x square minus a square, then we know how to simplify it. Even if you have x cube minus a cube, you can still simplify it using a cube minus b cube formula. But if, let's say if you have x to the power 7 minus a to the power 7, where we do not know the formula to simplify it, then how to do it? So this theorem will help you find the limit of function which are in this particular form. This limit exists. We will see in the जब हम आगे और कुछ पढ़ेंगे, आगे कुछ क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारे पास आएगा. ये सेम फंक्शन हम लोग देखेंगे कि इसकी लिमिट ये एग्जिस्ट करती है, बट आगे चलकर देखेंगे. अभी यू मस्ट जस्ट learn it as it is, that limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a is given by this. And this holds for every positive integer, even rationals के लिए भी hold करता है, not necessarily positive integers. Okay, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम लोग इसको डील कर सकते हैं. लेट्स से आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 1, x to the power 15 minus 1 upon x to the power 10 minus 1. Now we know that कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाऊंगी. तो बट अगर मैं ये रूल से इसको सिंप्लीफाई करूँ तो शायद हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी. तो फर्स्ट स्टेप इज द सेम, यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट एंड सी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. अगर कर रही है तो आप वही लिख सकते हो, बट as you can see, अगर आप 1 substitute करोगे, this will be 0 by 0. So it is indeterminate form. Right, so limit does not exist. Now the next step is to find the limit. So what we are doing is limit x tends to 1 मैंने रखा. अब इसको लिखा जा सकता है x to the power 15 minus 1 to the power 15, because 1 to the power anything is going to be 1. And मैं इसको separate लिख लेती हूँ, x to the power 10 minus 1 to the power 10. Now for this limit to exist, we must have in the denominator x minus 1, जो कि आप देख सकते हो. x should tend to a, and here you have x to the power n minus a to the power n. So this is very important. X should tend to this number. So here x is tending to 1. That much is clear, but we need in the denominator the same thing, x minus a. So we must have x minus 1. So we can multiply and divide it by 1. हमने अपने आप कर लिया. So limit x tends to 1. Now I can write it together. X to the power 15 minus 1 to the power 15 upon x minus 1. And since this is in the denominator, I can write this as x to the power 10 minus 1 to the power 10, and I can bring this x minus 1 in this denominator. Right? So up now, since x is limit x tends to 1, so we can apply the algebra of limits and इनको लिख सकते हैं हम division form में. Right? ये हमने लिख लिया. And we n a to n minus 1. So what is n here? N is the power, which is 15. 15, a here is 1. 1 to the power 15 minus 1, which is 14. Right? And in the denominator, if you see, n is 10 into 1 to the power 10 minus 1, which is 9. So 1 to the power anything will remain as it is. Only we have 15 by 10, which is 3 by 2. So this is going to be the limit of this function, which otherwise you couldn't have find out because हमारे पास कोई इसका formula नहीं है जिससे हम simplify कर पाए, and this is a rational function. So this is how you can find out the limit of
such functions where you see the power of x to be greater than 3 or 4, जिसमें आप factorize नहीं कर पा रहे हो. If you have such thing x to the power 7, 15, 19 or 100, then you can always relate it with this. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So you can try this question. Limit x tends to 0. Root of 1 plus x minus 1 upon x. Find the limit. You know all the methods to find the limit now. So you just have to tell me the limit, because this can be done in more than one ways. So you try it. Anybody? What is the limit? What do you think? Yes, Meghna? Ma'am, we can let y be 1 plus x. Okay. And so, ma'am, when x will tend to 0, so y will tend to 1. And then we can write it as limit of y tends to 1 upon under root of y minus 1 upon y minus 1. And ma'am, under root of y will be y upon y raised to power 1 by 2. Okay. And Okay. Right, correct. So if we want to use the same theorem, so what Meghna told us, we can let this 1 plus x, whatever is written inside the root, we can let it as y. Now, क्योंकि y में हम substitute करेंगे, so obviously the limit is going to change. तो पहले मैं substitute कर देती हूँ and then I'll change the limit. So this becomes y to the power half, because it was root, minus 1. Now I am writing x. If you will be, तो देखो ये हो गया y to the power half minus 1 to the power half. I can write it like this also, upon y minus 1. But उधर क्या था, अगर हम ये वाला यूज करना चाहते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a होना चाहिए. तो इधर x to the power n minus a to the power n upon x minus a था. So using the same thing, अब मुझे ये अगर x tend to 0 है, I'll have to see where is my y tending to. तो मतलब अगर x 0 हो रहा है, if x is tending to 0, so you can directly substitute and see in this. So if you substitute x as 0, so y किस तरफ जा रहा है? Y is tending to 1. So you can substitute this into your limit. So that will be limit x y tending to 1. So now this is exactly the same form जो हमने पीछे देखी थी. So this is equals to what? This is equals to na to the power n minus 1. So I can use now half y, because y is, sorry, a is here 1 to the power half minus 1. So this doesn't matter. This will be the same 1. So your answer will be half, right? So if you were using this formula, this theorem, then the limit is coming out to be half, और ये आपने कर लिया. बट जरूरी नहीं है आपको इसी से करना है ना, इसका एक और तरीका है. अगर किसी ने नोटिस किया, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस? बताओ कैसा फंक्शन है? Which function? Rational function in which root is also involved, right? We So can rationalize it. right, good. So if you first directly substitute it, if you're substituting 0, so it is root, this is the function. If you substitute, it will be 1 minus 1 upon 0. So 0 by 0. It is not working. But I told you, whenever you see root, so just like you said, we can always rationalize it. So if you rationalize now, so limit x tends to 0,
I will multiply and divide by its opposite sign. So it is minus here. So I'll multiply and divide by plus. Right? And now you can see it will be limit x tends to 0. This becomes 1 plus x minus 1, a square minus b square upon x root of 1 plus x plus 1. So this gets cancelled. X will also get cancelled. So you're left with limit x tends to 0, 1 upon root of 1 plus x plus 1. And when you substitute x as 0, so this is going to be root of 1 plus 1, which is 1 upon 2, which is the same thing, half and half, right? So maybe there are functions which can be dealt in more than one way. So it's your choice. आपको देखना है आपको कौन सा उस टाइम स्ट्राइक और आप उस सकते हो. Yes, ma'am. Okay, let's do this question. This is all also very similar. Try this question. Limit x tends to 9, x to the power 3 by 2 minus 27 upon x minus 9. Yes, who wants to try this? So all of you can see form से relate करो. Since we have limit x tends to a, इस number पर tend करता है हमारा x. It is x to the power n minus a to the power n upon x minus a. So n should be same. The power should be same. So you can already see it is 3 by 2. So for the second one also you will have to write 3 by 2. Ma'am, 9 raised to the power 3 by You can write it as, yes, 9 raised to the power 3 by 2. good. So if you see this 27 can be written as 9 raised to power 3 by 2. Why? Because root of 9 का cube, क्योंकि this is half, so you can write it as 3 and 3 to the power 3 is going to be 27. So this was the only catch here, that you will write 27 as 9 to the power 3 by 2. So let's write it. So this becomes limit x tends to 9, x to the power 3 by 2, 9 raised to power 3 by 2. And once you have this, you can directly see both these forms are similar, and now you can directly substitute and get your answer. So it is 3 by 2. A here is 9 raised to power 3 by 2 minus 1. So 3 by 2, 9 to the power half. 9 by 2 is the answer. Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Do this question.
Yes, Priyanshu, you want to answer this? Yes, ma'am. Bolo. Ma'am, we can put that formula as 80 is equals to n into 2 raised to the power n minus 1. Right. And ma'am, then after putting that, we will get 5 2 raised to the power 4 is equals to n into 2 raised to the power n minus 1. And then we can write 2 raised to the power 4 as 2 raised to the power 5 minus 1, and we can compare it with 2 raised to the power n minus 1, and then we will get n is equals to 5. Okay, good. So once you apply this limit using that theorem, we have n to the power to 2n raised to power n minus 1. So that is of the form na to the power n minus 1, and that is already given to be equals to 80. So we have to find out the value of n. So we can factorize this 80. So अगर आप कर रहे हो इसको देखो तो आपके पास जो हमारे पास आया है that is n2 to the power n minus 1, and 80 को हम लिख सकते हैं as 5 into 2 raised to power 4. And if we compare both of them, because n की value चाहिए, so if you compare both these, you can see n is equals to 5 here, क्योंकि n यहाँ पर 5 होना चाहिए, and obviously n minus 1 is equals to 4. So when you compare, that is also equals to 5. So you get n is equals to 5. Is that your answer, all of you? Did you all get this? Yes, ma'am. N is equals to 5. Right. So these were few questions based on that particular theorem. अगर वो आपको direct form दिख रही है तो आप उस theorem को use करके you can find out the limit. Otherwise all the functions will be of the form polynomial, rational, trigonometric, exponential, logarithm. ऐसे ही कोई functions होंगे जिसकी limit आप आराम से निकाल पाओगे. So that is the basic जो हमने पढ़ा है अभी limits के बारे में. नाउ लिमिट से ही एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप इधर ही समझ सकते हो. देखो, लेट्स से अगर मैं कंसिडर करती हूँ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो मुझे लिमिट चेक करना आता है वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट फॉर दिस फंक्शन. तो मैं 1 पर चेक कर रही हूँ, तो बेसिकली आई एम एट दिस पॉइंट और मैं इस पॉइंट पर लिमिट चेक कर रही हूँ फंक्शन की. तो हम क्या करेंगे, we will approach the function from the left hand side and from the right hand side, right? So what is the left hand limit of this function at x is equals to 1? कितना है बता सकते हो आप? 3, right? 3. You can, right. So from the left hand side the function is approaching to this, यही function है पूरा throughout. So the value here left hand limit is equals to 3. And if you see the right hand limit, that is also equals to, at x is equals to 1, 3. Right hand side se bhi the limit is coming out to be 3. And now if I ask you what is the value of the function, so value of the function at 1 कितनी है? वैल्यू का क्या मतलब है कि फंक्शन एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या वैल्यू अचीव कर रहा है. तो ये अचीव कर रहा है, ये सिर्फ अप्रोच कर रहा था, यहाँ पर अचीव कर रहा है, क्या है वो भी 3, right? So you can see the value of the function at this point is actually 3. अब देखो तीन चीजें सेम हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. जब भी ऐसा होगा तो आप ये चीज देखोगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन विदाउट एनी जंप पास कर पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो एकदम स्मूथली पास कर पाया है. आपको पेन लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसको बनाने के लिए, आप डायरेक्ट इसको इस पॉइंट से स्मूथली पास कर सकते हो. वाई? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड से भी वही वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, उस पॉइंट पर भी वही वैल्यू अचीव कर रहा है और उसके आगे भी वही पॉइंट पर वो अप्रोच कर रहा है. सो दैट मीन्स इस पॉइंट से अगर उस फंक्शन को स्मूथली पास करना है विदाउट एनी जंप, राइट, तो क्या होना चाहिए? You must have the left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of the function. Whenever you can draw the graph of the function without lifting the pen, अगर आप ऐसे without lifting the pen आप अपना ग्राफ बना सकते हो,
दैट ग्राफ इज कॉल्ड कंटिन्यूअस ग्राफ। कंटिन्यूअस मतलब कि आपको कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ग्राफ बनाती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ ब्रेक इन दिस ग्राफ। इस पॉइंट पर ग्राफ पर ब्रेक आ गया है, सो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। इफ आई ड्रॉ अनदर ग्राफ, लेट्स से ये ग्राफ है, तो आप देख सकते हो अगेन यहाँ पर हमारे पास ब्रेक आ गया है क्योंकि देयर इज अ ह्यूज जंप। इधर से लेकर इधर तक देयर इज अ ह्यूज जंप। अगेन दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस ग्राफ इस इंटरवल के लिए, इधर इस पॉइंट के लिए। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्राफ, सो देयर इज नो ब्रेक इन द फंक्शन। कोई ब्रेक नहीं है, एकदम स्मूथ ग्राफ बन रहा है और आप बिना पेन लिफ्ट किए बना सकते हो, तो इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस ग्राफ। सो द कॉन्सेप्ट दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, उसको हम अगर देखना चाहें तो वो कैसे देख सकते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शंस, एक ये कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है कंटिन्यूटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो जैसे अगर अभी हमने देखा इस पर्टिकुलर ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पर कि ये वन पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उधर क्या होना चाहिए था? सिर्फ इस सिंगल पॉइंट से फंक्शन को स्मूथली पास करना था। तो हमने देखा इस सिंगल पॉइंट पास कर रहा था बिकॉज तो इधर कोई नहीं आया, पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई ब्रेक नहीं आया, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या मतलब होता है? जब आप पूरे डोमेन पर बात करते हो, मतलब जहां जहां फंक्शन डिफाइंड है, अगर हर पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एक एक सिंगल पॉइंट के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तब उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर कभी भी आपको चेक करना है कि एक फंक्शन एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आपको उस पॉइंट पर क्या कंडीशन चेक करनी होगी? बताओ क्या चेक करनी होगी? इफ यू हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, Ma'am, if LHL is equal to RHL, which is equal to function of the value of the function, right? So if these three conditions are true for the function at a particular point, only then the function is going to be continuous, otherwise it is not going to be continuous. ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, जिसके लिए अगर फंक्शन को लेट्स से एक पॉइंट x is equals to a पर देखना है whether it is continuous or not, then we must have left hand limit at x is equals to a must be equals to right hand limit at a, and that must be equals to value of the function at a. अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब अगर ऐसा है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही इक्वल नहीं होंगे तो उसका मतलब है कि लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड से आपने इस पॉइंट को अप्रोच किया ए को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रही है और राइट हैंड लिमिट कुछ ये आ रही है, सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ जंप। सो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, चाहे वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल भी हो, तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा बिकॉज देयर विल बी अ जंप। या ऐसा हो सकता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब ये दोनों हमारे पास सेम है but they are not equals to value of the function at that point. So that means अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम हो गए इस पॉइंट पर, एक ही तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर मैं ए पर देखूं तो वो यहाँ डिफाइंड नहीं होके लेट्स से यहाँ कहीं डिफाइंड है। सो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो सेम है, बट बिकॉज वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम नहीं है, उधर यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड होगी, सो देयर इज अ जंप अगेन। तो जंप और ब्रेक होगा, सो द फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी
कंटिन्यूअस। तो अगर कोई भी इनमें से कंडीशन हो रही है, द फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूअस। सो यू मस्ट रिमेंबर कि तीनों के तीनों अगर इक्वल होते हैं तभी उस पॉइंट से स्मूथली हमारा ग्राफ होता है। अदर बता देते हैं that left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of the function, and then they will ask you find the value of the constant. जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, it says find the value of the constants in the following function if the limit of the function exists, limit exist कर रही है and is equals to value of the function, value of the function के भी equal है। तो उसका मतलब है लिमिट एक इंडिकेटेड पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन्स? व्हाट डज दिस कंडीशन इम्प्लाइज? Ma'am, that it is a continuous. राइट, कंटिन्यूअस फंक्शन एट विच पॉइंट? एक पॉइंट पर ही कंटिन्यूअस है, सिर्फ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू a, राइट? यही कंडीशन बोल रहा है। तो क्लास 11th में वो आपको ये नहीं बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है एक पॉइंट पर, वो आपको पूरा ये बता देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। बट मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया है कि ये कंटिन्यूटी एट अ सिंगल पॉइंट की ही बात कर रहे होते हैं। तो मैं इसको रेफर करूंगी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, और मैं आपको एक एडिशनल वीडियो है क्योंकि ये क्लास 12th में आता है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, बट एग्जैक्टली वही सेम चीज़ है जो हम क्लास 11th में करते हैं। तो मैंने वो आपको नाम अभी बता दिया है। तो मैं आपको वीडियो बताऊंगी जो मैंने यूट्यूब पर अभी डाली हुई है पहले से ही, वो क्लास 12th का टॉपिक है, तो वो आप कवर कर लेंगे, इसी वक्त कवर कर लेंगे अभी इसी के साथ। तो हम ये क्लास 12th में स्किप करेंगे, मतलब मैं उधर रिवाइज करवाऊंगी बट पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, बिकॉज ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है और बहुत ईजी अभी आप सीख जाओगे। सो लेट्स से मैं इस क्वेश्चन को डील करना चाहती हूँ और इसी यही कॉन्सेप्ट है और यही क्वेश्चन आपको बोला गया है सेम, ठीक है? क्या बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस फंक्शन की और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है। तो इस फंक्शन को ध्यान से देखो, इधर एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द कांस्टेंट हियर? k. Right, so you have to find the value of k here. That is your question, and the given condition is that limit exist करेगी और किस पॉइंट पर? 0 पर एग्जिस्ट करेगी। सो लिमिट at x equals to 0 exist and is equals to value of the function. तो मैंने लिख लिया limit x tends to 0 f of x is equals to f of 0. तो इसको ही अगर मैं लिखना चाहूँ तो this will be, अगर ओपन करके लिखना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit of the function is equals to value of the function at 0. और यही हमने कंबाइन करके लिखा हुआ है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एडिशनल लिख दिया है। इसको कंबाइन करके हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट? अब मेरे को क्या करना है? सिर्फ लिमिट ही चेक करनी है और मेरे को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर इस फंक्शन में से आप की वैल्यू फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू पूछ रही हूं मैं, at x is equals to 0, it is k, right? So value of the function at x is equals to 0 is k, so you can write f of 0 as k, right? So that means अगर मुझे k की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0. yes or no? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो अब लिमिट निकालना तो आपको आता ही है ना, वो तो हम पढ़ते ही हुए आ रहे हैं। लिमिट कैसे निकाल सकते हैं? सो नाउ यू जस्ट हैव टू कंसिडर द फंक्शन एंड फाइंड आउट इट्स लिमिट. नाउ यू मस्ट सी वेदर यू विल हैव टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, या फिर एक ही स्टेप में हो जाएगा. सो फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन देखकर बताओ, कैन यू फाइंड आउट द लिमिट इन वन स्टेप और डू यू नीड टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट? इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की जरूरत है?
No, ma'am, we can find it in one step only. Right, because x not equals to 0 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 राइट हैंड साइड ऑफ 0 फंक्शन इसी तरीके से वैल्यू ले रहा है, सो दोनों ही लिमिट इसी से निकलेंगी। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको 2 स्टेप में करने के लिए, डायरेक्ट ही एक स्टेप में निकालते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन, क्या लिख सकते हैं इसको, 3x, और अब मैं इसकी लिमिट इजीली फाइंड कर सकती हूँ। सो व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस, कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कौन सा दिख रहा है हमें, साइन फंक्शन, राइट। साइन की लिमिट किससे एग्जिस्ट करते हैं, एंगल, x will also tend to 0. So 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। You already know this concept. So this together will exist and it will be equals to 1. So 1 into 5 by 3 is equals to k. So what is the value of k? K is equals to 5 by 3. That is your answer. Right? So ये जो पूरा concept है, ये है continuity of the function at a single point. तो अगर या तो बोलें कि फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, या बोल दें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, दैट ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग। तो वो सीधा सीधा आपको यही करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू लिखो, और बाकी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है वो आप सारे फंक्शन का निकालना आप सीख चुके हो, तो बस उन्हीं से रिलेट करके यू विल हैव टू फाइंड आउट द लिमिट। क्लियर टू एवरीवन? कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछो इस क्वेश्चन में, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। इफ देयर इज एनी डाउट टू एनीबडी आप पूछ सकते हो, कोई भी स्टेप अगर क्लियर नहीं है तो। ओके, अगर क्लियर है तो डू दिस क्वेश्चन। इट सेज कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, the question is the function is continuous at x is equals to 1, you have to find the value of a and b। already given है कि function continuous है at x is equals to 1, you have to find the value of a and b। करो। ओके, सो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x is equals to 1, सबसे पहले हम कि लिमिट एंड इक्वल होगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equals to 1, राइट? यही दिया हुआ है। नाउ यू हैव टू टेल मी वेदर इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एक ही स्टेप में निकाल पाएंगे या अलग अलग निकालना होगा। यस निष्ठा? मैम अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड मैम इट इज डिफरेंट मैम, द फंक्शन इज डिफरेंट। Right. So as you can see, for left hand side of one function s value ले रहा है, and for the right hand side of one function 3ax plus b से value ले रहा है. So we will have to find left hand and right hand limit separately. तो यही open करके अगर आप लिखना चाहो, so left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of the function at 1. यही condition है. तो हम पहले निकाल लेते हैं what is the left hand limit.
So to find the left hand limit, I will write limit फंक्शन की निकाल रहे हैं किस पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1. तो फंक्शन देखना है कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1. सो यू आर यूजिंग दिस फंक्शन विच इज 5ax minus 2b, right? This is your लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1. ऐसे फंक्शन डिफाइंड है. तो आप मुझे बता सकते हो कि इसकी लिमिट क्या होगी? व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इज दिस? बता सकते हो कैसा फंक्शन दिख रहा है? 5ax plus b 2b जो भी है. Polynomial. पॉलिनोमियल, राइट. एंड Polynomial पॉलिनोमियल की function. कैसे लिमिट निकालते हैं? Direct substitution. Direct. So you can directly substitute 1. So substitute 1, you get 5a minus 2b. That is the left hand limit of the function, right? Similarly, find out the right hand limit. Right hand limit will be limit function की निकाल रहे हैं on the right hand side of 1. So I'll see which function we are using. So that is the first function, which is 3ax plus b. Again, what kind of function is this? Again, you see this is a polynomial function. Polynomial. Right. So you can substitute x is equals to 1. So it becomes 3b. You have the limit. And now what is the value of the function at 1? Which is equals to कितना है? Value of the function at 1? 11. 11. Value of the function at 1 is 11. So left hand limit is equals to right hand limit is equals to value of the function. तो मैं इनको सबको equate कर सकती हूँ. 5a minus 2b is equals to 3a plus b is equals to 11. Now see, you have to find the value of a and b. अब जब a and b निकालना है, दो values निकालनी है, so you need two equation. दो equation से ही solve कर पाओगे? So now you solve and tell me what are the values of a and b. Ma'am, 8 and 1. 8 and 1. Okay. 8 and 1 आ रहा है? Ma'am, like A की 1 and B की 8. Okay. A is 3. A 3 आ रहा है. yes, ma'am. A is 3 and B is And B is? Oh, sorry, ma'am. I did it wrong. B is 2. 2. Right? So you have A equals to 3 and B is equals to 2. So those are the values of A and B. तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में भी जो सिर्फ मेरा फर्स्ट स्टेप था, दैट वाज कि जब बोला था फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैंने सिर्फ कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई कर ली एंड देन लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट लिमिट से ही आया, राइट हैंड लिमिट भी लिमिट से ही निकाला हमने. देखकर फंक्शन अगर रैशनल हो तो रैशनल लगाएंगे, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल की तरह लिमिट निकाल लेंगे एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो हमें देखना आता ही है. बस इक्वेट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, वी विल हैव द आंसर. क्लियर? सो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हैं और मैंने कुछ ग्राफ्स भी डिस्कस किए हैं जो कि आप उधर से वो पूरी वीडियो देखेंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे. वो मैं होमवर्क के लिए आपको दे दूंगी क्योंकि उसमें जो होमवर्क क्वेश्चन है वो भी कुछ कुछ कवर हो गए हैं, तो आप इजीली आराम से वो कंप्लीट कर सकते हो. और उधर मैंने डिटेल में यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है तो और अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है? सो दिस कंप्लीट्स योर लिमिट.
लिमिट में हमने पढ़ लिया है व्हेन डू वी से द लिमिट एग्जिस्ट, then what is the limit of the function at x is equals to a, how to write it, then how to find out the limit of the function mathematically and graphically. ग्राफिकली इतना आपका सिलेबस में पूछा नहीं जाता है, बट आपको पता होना चाहिए, तो मैं ज़रूर आपको ग्राफ्स वगैरह देकर लिमिट पूछ सकती हूँ whether it exists or not. एंड नाउ दैट यू ऑल्सो नो कि फंक्शन एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं, तो ग्राफिकली कंटिन्यूटी देखना वो भी आपको, तो बेसिक ब्रेक फंक्शन है तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, राइट. एंड वो सारे हमने क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो जो भी होमवर्क अब है वो आप कंप्लीट करोगे, जो भी मिस हो गया. अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्विज करते हैं. सो ऑल ऑफ यू ओपन quizzes.com. सब लोग राइट नाउ. हाँ, राइट नाउ ओपन quizzes.com. बहुत छोटा सा है, 7 क्वेश्चन ही हैं. वी हैव टाइम ना, 31 हो रहा है अभी तो, सो वी हैव टाइम, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, ओपन quizzes.com. किया सबने ओपन? Yes, ma'am. ओके, Yes. राइट जॉइन माई, अच्छा एक मिनट, यू ओपन joinmyquiz.com, नॉट quizzes.com, क्योंकि उधर आपका अकाउंट पर खुलेगा. यू ओपन joinmyquiz.com विदाउट एनी गैप, joinmyquiz.com. सब लोग टाइप कर लो, एंड व्हेन इट इज आस्किंग फॉर कोड तब मुझे बताना. एक बार ओपन करो पहले. Ma'am, we don't have to open quizzes. नहीं, ओपन करो joinmyquiz.com, बिकॉज मैं लाइव क्विज करूंगी तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट भी दिखता जाएगा. ओके, व्हेन यू हैव ओपन joinmyquiz.com, you enter this code 675715. 675715. अभी स्टार्ट मत करना क्विज, ठीक है, पहले बस ओपन कर लो. मैम, वो 675. क्विज़ेस से भी खुल जाता है, क्विज़ेस अच्छा, पे भी जॉइन कोड डाल के खुल रहा है. आपका वहां पर आ रहा था. ओके, तो उधर से भी ओपन कर लो अगर आप उधर ही हो तो. 675715, दैट इज द कोड. खोलिए सबने? Ma'am, please wait a minute, ma'am. 43 स्टूडेंट्स आर देयर, तो सबको ही ज्वाइन करना है, करो. मैम, मेरा नाम नहीं आ रहा. अब लिया, दीक्षा महेश्वरी, आप 2 डिवाइसेस से लॉग्ड इन हो. दीक्षा, Oh, ma'am, let me see if there might be some problem. Ma'am, is my name coming? आप लोग ज्वाइन कर लो, मैं आपको बता दूंगी कि सबने ज्वाइन कर लिया या नहीं. आप ओपन करो अभी पहले. मैम, कोड 675715 ही है ना? 675715. ओके, मैं आपको बताती हूँ कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है. I'll show you here. 9 students have joined. बाकी लोगों को जल्दी ज्वाइन करो. 675715, that is the code. Don't start the quiz अभी, बस आप ज्वाइन कर लो.
जल्दी जल्दी करो, जल्दी। इतना टाइम क्यों लग रहा है? joinmyquiz.com ओपन करके जस्ट राइट द कोड 675715। Eleven students have joined. मैम मेरा नाम नहीं आ रहा ना इसमें? आरुषि, ते स्लो क्यों ज्वाइन हो रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। Ma'am, am I there? Anuvanshika. मैं देख में सब सो वानी, रिया, सेमोई, आद्या, मेघना, लिया, मैत्री। Actually, I got disconnected in between. Who got disconnected? You? Ma'am Jayati. Yes, Jayati. What are you saying? Ma'am, where do we have to join? joinmyquiz.com. Open joinmyquiz.com and then enter the code 615715. सानवी, अनुवंशिका, अरुणिमा, बच्चों जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, इतना टाइम ज्वाइन में लगेगा, फिर कैसे करेंगे? Ma'am, can you please check for me, Advika? Ma'am Jayati as well. Rania has joined. Rania, Sanvi, Anuvanshika. Advika is not there. Ma'am, did you see Jayati? I'm Agnes. 675715. That is the code 675715. joinmyquiz.com। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है? This is the code 675715 and 21. These are the students who have joined. जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। 23 हुए हैं अभी तक। 43 स्टूडेंट्स आ गए। 20 मोर। जल्दी करो। मैम मेरा अभी भी नहीं हुआ ना। आरुषि उससे खोलो ना, joinmyquiz.com। मैम मैं joinmyquiz.com, मैम मैंने वही टाइप किया तो मैम क्विजेस खुल जाता है और फिर मैम वो बोलता है एंटर अ ज्वाइन कोड, तो मैम मैंने वही कोड डाला है ना। फिर उसके आगे वो आपका नेम पूछ रहा होगा, तो यस आप डालो, नेम डालो अपना। वो भी डाल दिया मैंने, वो ऑलरेडी उसने आरुषि दिखा दिया, बट फिर मैम मैं फिर स्टार्ट पे क्लिक करूँ क्या? अभी मत करो,
मैम स्टार्ट पे क्लिक Yes, ma'am, करना है, enter पे उसी के click पास करना है। ज्वाइन हो रहा है। यस मैम वही नहीं अच्छा, समझ आ रहा, मेरा भी वर्क नहीं ओके शो हो रहा। करो। ओके मैम, ओके मैम, फिर शायद यस मैम, ओके। अब आ गया है, ठीक है। और भी बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, फिर वो भी करो जल्दी से। 32 और जल्दी, फिर हम स्टार्ट करेंगे ना, बिकॉज इट इज गोइंग टू शो मी द लाइव रिजल्ट। जो भी आप, तो वो यहाँ पर Now can my name? जयती, Yes, ma'am. yes, your name is here, you're here। 33 स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। और जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब बताओ जल्दी। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम सान्या मैम, वो मेरा ना मैम फ्रीज हो जाता है स्क्रीन, तो फिर मैम स्प्लिट स्क्रीन में नहीं कर पाती और बैक नहीं हो पाता। ओके, तो ये टीम्स पर नहीं हो पाता है ना, तो एक यस काम मैम। करो, आप इस पर ज्वाइन कर लो अभी, उसको रहने दो, टीम्स को इधर ज्वाइन करो अभी। ओके मैम। और कोई ज्वाइन कर रहा है, बिकॉज आई कांट सी अदर पीपल। यहाँ पर अभी बहुत सारे बच्चे, 10 बच्चे के करीब नहीं है जो कि टीम्स पर हैं और ज्वाइन यहाँ पर नहीं कर पाए हैं। एना नहीं है, कनिका, गुसैन, कनिका इज देयर। ये क्या, ये किसका नाम है ये, जबूती काबा, व्हाट इज दिस। पता कैसे चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया अगर आप दूसरा कुछ नाम डालोगे तो। 34। ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। बहुत टाइम हो गया, कोई कर रहा है, मैं वेट करूं। एंड्रिया, बिकॉज आई हैव अ स्कोर शीट ऑल्सो विद मी, तो मुझे पता होगा कि किस बच्चे ने नहीं दिया है। संस्कृति, हैव यू जॉइंड? You have not joined. The code, I just have to start the game now. You have to just start the Sanskriti, your name is not showing here. So Ma'am, what on do my phone screen, ma'am, Click it's on the showing. start game and then you'll be shown up on the screen. all of you please click on the start button after you enter your name? Click on the start button because I'll be able to मुझे others also जो लोग स्टार्ट अभी क्लिक नहीं किया है, आप स्टार्ट पर क्लिक कर दो, ओनली देन आपका यहाँ पर नाम आएगा, देन आई विल स्टार्ट द गेम। Can you please tell the code once again? This is the code 675715. Write joinmyquiz.com, then enter the code, your name, and then click on start button so that I can see your name, and then we will start the game. So 36 of you have joined now. और किसने ज्वाइन नहीं किया है? रिया शर्मा, प्रियांशी, प्रियंका वर्मा, प्रगल्पा, निद्या, मानसी, मानवी, कनिष्का सैनी, जानवी, अना, दृष्टि, प्रगन्या, एंजल, आद्या। Yes, now I can see Janvi.
ओके, तो ऐसे ज्वाइन करना है अब नेक्स्ट टाइम से जब भी हम क्विज करेंगे, लाइव क्विज, ठीक है। आज सबको पता चल गया है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। 37 स्टूडेंट्स हैं और कुछ 5-6 स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। सो आई विल सी द लिस्ट कि किन बच्चों ने नहीं किया है, ऑल्दो 2-3 के नाम मुझे अभी पता है। लेट्स स्टार्ट। You can start the game. -2 or 2 minus? मैम मेरा ना गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने वापस ज्वाइन किया है।
जल्दी करो। Done. Diksha, Nia, Anuvanshika, Drishti. Ma'am, actually, ma'am, I don't know. There was some glitch in my phone, so I had to connect and reconnect 3 times. That is why that my 2 names extra. Yes. Ma'am, there was also some issue with ma'am, and ma'am, my phone So, got hanged. ma'am, Okay, so I just a did it. minute. So, ma'am, Just a minute. okay, ma'am. Okay, so the results that I have with me, the first, I think 5 questions are correct. That's what it is. No, 5. ये कुछ दिखा रहा है. What is Oh, this? ma'am, 6 questions were correct and 1 I got for redemption Okay. at the end. And Spruha? Spruha, your 7 questions were correct. Ma'am, 6 of them were correct. Ma'am, in the power round, one question I had done wrong, then got correct. Ma'am, 7 are correct in mine. It's showing that on the screen that I have. Okay, what the result I have, you can see on it on your screen. जो मैं result यहाँ पर display कर रही हूँ. Arushi 5 लिखा हुआ है and 6900 points. Spruha 6270. Then Nishtha 6260. Ma'am, the Samoi 5 6. is the answer streak. Okay. But Yes, ma'am. Then 1 I got for redemption. So that's how it is showing. But यहाँ पर ये final score दिखाता है कि maximum score कितने हैं after taking कि आपने redemption वाला लिया या नहीं लिया या फिर directly सारे correct किए हैं. So Ma'am, it is also speed. yes. It also matters, ma'am, and also that key we get certain badges. So one of it I used to double my point. हाँ. So I'll see from next time अगर ये सब मैं हटा पाऊंगी तो मैं I'll remove them. But अगर नहीं भी तो these are your scores. There are few students who are still attempting, but आप देख सकते हो यहाँ पर अपने score. First 5 Arushi, Spruha, Nishtha, Semohi, then Anvi Sharma. And then we have Drishti, Sansriti, Smera, Sanvi, Rania. And यहाँ पर आप देखो assignment also. तो आप एक बार उधर आराम से बैठकर तब भी कर लेना. There is no problem. So the first question is, what is the limit of this? If you have to find the limit. देखो x square minus 36 upon x minus 6. So you will factorize it. We can see x minus 6, x plus 6 is direct, and 6 plus 6 is going to be 12. So the limit should be 12. Right? यही था answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
देन सेकंड के लिए 21 ने करेक्ट किया, 8 इनकरेक्ट है. सो द क्वेश्चन इज sin 5x upon x. So we know the limit will exist for sin if we have the same thing in the denominator. So multiply and divide by 5. So limit is going to be 5. 5 आया है? Yes. 5 was the correct answer. Yes, Those who ma'am. have made the mistake. Okay, 19 incorrect. So देखो, अगर आप इसका लिमिट निकालना चाहते हो, you will take the LCM first. So it is going to be 2 minus x in the numerator and 2x will come in the denominator. Since you have 2 minus x and this is x minus 2, you will take negative sign out. तो negative बाहर निकाल कर it is going to be minus 1 by 4. Minus 1 by 4 was the correct answer. वही है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. राइट, इसको हाथ से करके देखना है क्योंकि 19 इनकरेक्ट है, तो ऑब्वियसली आपने कुछ छोटी मिस्टेक करी है और बच्चों ने. ओके, 12 इनकरेक्ट. सो दिस वाज अ सिंपल फैक्टराइजेशन क्वेश्चन. आप इसको बनाते सो ये आ जाता x plus 1 x plus 2 एंड दिस वुड हैव बीन x plus 2 x minus 2. तो आप कैंसिल आउट करोगे एंड फिर सब्स्टिट्यूट करोगे. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? वाह, कितना है इसका? 1 by 4. 1 by 4. राइट, सब्स्टिट्यूट करने पर. Then this is sin cube x upon x cube. So ये तो directly हमें पता है, it is going to be 1. Right? 12 incorrect. तो जिनके ये incorrect है तो they need practice थोड़ा सा, ठीक है? And this is 2 minus x when x is less than 2, 2 plus x when x is greater than or equals to 2. Then fx is, पूछा है fx क्या है? Continuous है 2 पर, continuous है 0 पर, discontinuous है 2 पर, none of these. तो आप देख सकते हो अगर 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो लेफ्ट हैंड, एक डाउट है मुझे. एक मिनट में बता रही हूँ, एक बार सुनो. लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं 2 पर, सो 2 minus 2 इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इससे निकलेगी. राइट हैंड लिमिट निकालोगे सो यू आर यूजिंग दिस फंक्शन विच इज 4. तो यहाँ पर तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 2. पहली चीज. हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा. द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 2. बोलो आरुषि, व्हाट इज द डाउट? व्हाट इज योर डाउट आरुषि? मैम मैम कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो जब 0 पुट करोगे तो यू हैव, अच्छा 0 पर ये 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट, सो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 हम यहाँ से ही निकालेंगे. राइट, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है. सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो 0 पर अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट पर भी 0 आ रहा है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 एक्चुअली इनको डायरेक्टली डिफाइन करके देनी चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट बता सकते हो. बट यहाँ पर ओवरऑल अगर x लेस देन 2 ले रहे हैं तो हम ये इससे भी निकाल सकते हैं, वो भी 2 ही आ रहा है. सो राइट, इसमें ये ऑप्शन गड़बड़ है. कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए था, तब करेक्ट आंसर आपका होता है डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है. ये डायरेक्टली क्वेश्चंस ऑनलाइन है तो मैं इसको डायरेक्ट पिक करती हूँ, तो कुछ कुछ कहीं कहीं पर मिस्टेक होती है, डोंट वरी. ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया यहाँ पर क्या मिस्टेक है. ठीक है, तो अगर आप वैसे देखोगे तो डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 भी आ रहा है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं. Then the last one, the function fx is equal to tan x is discontinuous on which set? तो tan x का अगर ग्राफ you remember तो tan x की वैल्यू कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होती, वहीं पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन. So tan x is not defined at 0, pi, 2 pi, 3 pi, right? तो कहाँ पर नहीं होता? n pi पर. It is not defined. pi by 2. Ma'am, it is 2n plus 1 pi by 2. Yes, ma'am, pi by 2. pi पर तो 0 होता है. So pi by 2, 3 pi by 2, right? 90 पर, then 270 पर, इन सारे पर values पर वो not defined होता है. So it will be n pi by 2. The last option was correct. So these were your questions. मैं इसको फिर से भेज दूंगी आपको होमवर्क में, आप आराम से एक बार बैठकर हाथ से करके देख लेना जिनका भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे. बाकी जो और थोड़े से
डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस है वो मैं आपको होमवर्क के लिए सेंड करूंगी. ओके, आज के लिए इतना ही. फाइन. I'll WhatsApp you कि कौन सी वीडियो आपको देखनी है YouTube पर. अगर होगा तो मैं Teams पर ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगी and then you can watch it from there. Fine? Okay, चलो टाइम अप हो गया. Yes, ma'am. Bye everyone. Thank you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.